Good morning students, welcome to your English class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. So students, first of all we will discuss our password, that is remember. Its meaning is to bring something or somebody back into your mind or recall knowledge from memory. हिंदी में इसका अर्थ हो सकता है याद है, याद आना या याद करना. Now about using this word to frame sentences, I want to tell you that the fly finally remembered its name. Or do you remember your parents' birthday? Or it can be, do you remember what happened yesterday? So that was about our password. Now what we are going to do in our English class today, students, first of all we will do exercise K and L in our English reader book. Then we will discuss life skills that are on page number 24. These life skills will be given to you as holidays homework. Now next is spell drill of lesson number 2. This has to be done in our English reader notebook. So first of all we will do bookwork exercise. Yes students, open your English reader book or English communicate book at page number 23. Students, as you know that we are on our bookwork of chapter number 2, The Fly. Yesterday we did 4 exercises in which we did written work for 3 exercises and 1 exercise, that was exercise I. We simply discussed that exercise. हमने उसको सिर्फ डिस्कस किया. That was about rhyming words. Now today in our English class we will do 2 exercises, that is exercise K and exercise L, and we will discuss the section life skills. So open your English book at page number 23. I am sure that you have taken out your English books with you. Now let us start. Write well. Exercise K. Number these sentences in the correct order. Write the sentences below. Then read the story. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में नंबर दो. लाइक नंबर देते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे जो सेंटेंस आएगा वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा. उसके बाद जो जो हैपनिंग हुई, जो जो घटना घटी जिस तरह से, उसके हिसाब से हम उसको नंबर देंगे. नाउ राइट द सेंटेंसेस बिलो. फिर हमें सेंटेंसेस को नीचे लिखना है. हियर यू कैन सी देयर इज स्पेस गिवन टू अस. यहाँ हमें इनको नीचे लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलरेडी रिटन, वो पहले से लिखा हुआ है. एंड वी हैव टू राइट सेंटेंस नंबर 2, 3 and 4 here. Then what we have to do? Then read the story. उसके बाद हम ऑर्डर में लिखकर फिर हम पूरी स्टोरी को एक साथ फिर से रीड करेंगे. So this is your class work. You have to note it down. Write class work on the top left corner of the page and today's date, that is 28th May, on the top right corner of the page. Now we will read these sentences and let us discuss. हम डिस्कस करते भी हैं कि ये घटना किस किस क्रम में हुई. करेक्ट ऑर्डर मतलब सही क्रम में लगाना है हमें नंबर. Yes, first we will read all the sentences and translate. Yes, we should go home now. हाँ, हमें अब घर जाना चाहिए, said रोहन. रोहन ने कहा. Next is look at the dark clouds in the sky. देखो आकाश में काले बादलों को देखो. Sam called out. Sam ने एकदम से बोला. It is going to rain. ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है. They took their kite and ran home. उन्होंने अपनी काइट ली और घर की तरफ भागे. सारा, सैम एंड रोहन वर फ्लाइंग ए काइट इन द पार्क. सारा, सैम और रोहन पार्क में एक पतंग उड़ा रहे थे. Here you can see this is the scene of a park. ये पार्क का सीन है. This is Sara, this is Sam and this is Rohan. They were flying the kite. वो काइट उड़ा रहे थे. अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि आकाश में बादल छाए हुए हैं. और कैसे बादल हैं कि इस तरह से है कि लगता है कि अभी बारिश आ जाएगी. तो बारिश आ जाएगी तो क्या होगा, उन्हें अपने घर जाना है, काइट भी भीग जाएगी. तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि चलो अब हम घर चलते हैं.
फिर वो क्या करते हैं, अपनी काइट लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं या भाग जाते हैं। सो इस पिक्चर को देखकर ये हमें समझ में आ रहा है कि ये सीन है, कुछ पिक्चर को देख रहे हैं हम और कुछ क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग द सेंटेंसेस, जो हमें जो दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को भी रीड कर रहे हैं। सो जो विजुअल है और जो रिटन वर्क है उसकी मदद से हम एक स्टोरी फ्रेम कर रहे हैं। वो बहुत इजी है स्टोरी स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि सारा, सैम एंड रोहन वर फ्लाइंग अ काइट इन द पार्क। सबसे पहले क्या है कि वो काइट फ्लाई कर रहे थे पार्क में। नेक्स्ट क्या हो सकता है इनमें से, आई हैव ऑलरेडी पुट नंबर्स, मैंने नंबर लगा दिए हैं। उसके बाद क्या घटना घट सकती है कि सैम ने कहा कि देखो, क्योंकि वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे काइट उड़ाते समय, तो सैम ने नोटिस किया, सैम ने कहा, दिस इज सैम, कि देखो आकाश में कितने घने बादल, काले बादल हैं, लगता है बारिश होने वाली है। जब सैम ने ऐसा कहा तो रोहन ने क्या कहा, येस वी शुड गो होम नाउ, हाँ हमें अब घर जाना चाहिए। फिर एक छोटी सी घटना है बस। उसके बाद देन दे टुक देयर काइट एंड रेन होम, उन्होंने अपनी काइट ली और घर चले गए। सो टोटल 4 सेंटेंसेज आर देयर, 4 सेंटेंसेज हैं हमें जो मिले हुए हैं। 1 इज़ ऑलरेडी नंबर, पहले पे नंबर लगा दिया गया है। सो वी हैव टू पुट नंबर इन 3 सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट ऑर्डर। सो at number 2 दिस सेंटेंस इज़ राइट, ये सेंटेंस हो सकता है। नंबर 3 हमें यहाँ लगाना है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, वो पार्क में पतंग उड़ा रहे थे, फिर सैम ने नोटिस किया तो हमने नंबर 2 लगाया। फिर रोहन ने कहा कि हमें घर जाना है तो नंबर 3 यहाँ लगाया। और एट नंबर 4 उन्होंने क्या किया, अपनी काइट ली और घर की तरफ भागे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, हमें ये नंबर के अकॉर्डिंग जो हमने नंबर लगाए थे वो सारी स्टोरी नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ लिखनी है। एट नंबर 2 जो नंबर 2 था वही सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है जिस पर हमने नंबर 2 लगाया, जो नंबर 3 वाला सेंटेंस यहाँ और नंबर 4 वाला सेंटेंस यहाँ। सो आई एम श्योर कि आप इजीली ये कर लेंगे। दिस इज़ आवर क्लास वर्क। और फिर हम फिर से पूरी स्टोरी को रीड करेंगे, वो आप करेंगे स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर ली है। फर्स्ट यू राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस जिन पर हमने नंबर लगाया है। उसके बाद यू ट्राई टू रीड द होल स्टोरी, सारी स्टोरी को आप रीड करेंगे क्योंकि वो करेक्ट ऑर्डर में होगी। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज के। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज एल। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज, दिस इज पेज नंबर 24 in the English reader book. Now this is exercise L that we are going to do now. First of all write class work here and today's date here. This is exercise L. I am going to read this exercise. Read the names of animals given in the box. इन एनिमल्स के नेम को पढ़िए जो बॉक्स में दिया गया है। दिस इज द बॉक्स, यू कैन सी, ये बॉक्स है, यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स, इन नेम्स को करेक्ट कॉलम्स में लिखेंगे। वी हैव बीन गिवन 2 कॉलम्स, हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं। टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात करिए। टेल हर / हिम व्हाट यू नो अबाउट दीज एनिमल्स, अपने पार्टनर को बताइए कि आप इन एनिमल्स के बारे में क्या जानते हैं। हाउ डू दे मूव, दिस इज़ अबाउट एनिमल्स, कि वो किस तरह से मूव करते हैं। हाउ मैनी लेग्स डू दे हैव, उनके कितने पैर हैं। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वी हैव बीन गिवन 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज़ अबाउट एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, ये कॉलम उन एनिमल्स के बारे में है जो उड़ सकते हैं। द सेकेंड कॉलम इज़ अबाउट एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई, ये उन एनिमल्स के बारे में है कॉलम जो उड़ नहीं सकते। सो वी हैव टू अरेंज द नेम्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू दीज 2 कॉलम्स, हमें इन एनिमल्स के नेम को अरेंज करना है इन 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंग। सो वी विल रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स। अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये क्या करना है स्टूडेंट्स,
आपको एनिमल्स के नेम अरेंज करने हैं। अपने पार्टनर से बात करिए। एट दिस टाइम हु इज़ योर पार्टनर? आई एम योर पार्टनर। तो वी आर डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज टुगेदर, हम डिस्कस कर रहे हैं और हम इसको एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द बॉक्स। एलिफेंट, आउल, बी, एंट, डोंकी, माउस, बटरफ्लाई, ईगल, क्रॉ, ज़िब्रा। ये एनिमल्स के नेम दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आई वांट टू टेल यू दैट आई डिस्कस्ड विद यू ऑलरेडी। मैंने आपसे ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया था कि जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं वो एनिमल ग्रुप में ही आते हैं। तो यहाँ ये सब एनिमल्स के नेम हैं। हमें देखना है कि कौन से इनमें से एनिमल्स उड़ सकते हैं और कौन से एनिमल उड़ नहीं सकते। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉलम। हम इस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नेम एलिफेंट, नो, एलिफेंट कांट फ्लाई। आउल, यस, आउल क्या है? एक बर्ड है, वो उड़ सकता है। सो वी विल पिक आउल फ्रॉम हेयर एंड राइट इट हेयर। नेक्स्ट इज बी। बी क्या है? एक तरह की इंसेक्ट है, मक्खी है, मधुमक्खी के जैसे बी होती है। वी विल पिक बी वर्ड और एनिमल नेम फ्रॉम हेयर एंड राइट इट हेयर। नेक्स्ट इज एंट। एंट क्या है? चींटी, नो। डोंकी, नो, ये नहीं उड़ सकते हैं। माउस, नो। बटरफ्लाई, येस, बटरफ्लाई कैन फ्लाई। सो वी विल पिक द नेम ऑफ बटरफ्लाई और यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। नेक्स्ट इज ईगल। ईगल कैन फ्लाई। ईगल इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड। ईगल बर्ड का नेम है, वो स्काई में बहुत ऊंचा उड़ता है। सो वी विल पिक दिस वर्ड फ्रॉम हेयर एंड राइट इट हेयर। नेक्स्ट इज क्रो। क्रो क्या है? कौवा, आप जानते हैं, इट कैन फ्लाई। सो वी विल पिक दिस नेम ऑफ एनिमल फ्रॉम हेयर और हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ अवर दिस कॉलम इज कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया है। दिस इज द कॉलम अबाउट द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ये सब एनिमल्स उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। आउल, बी, बटरफ्लाई, ईगल एंड क्रो, दे ऑल कैन फ्लाई। तो नेक्स्ट आवर कॉलम इज अबाउट एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई, वो नहीं उड़ सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट एलिफेंट, yes, elephant can't fly, so we will write this name here. Next is owl, no, owl तो उड़ सकता है। bee can fly. ant नहीं उड़ सकती है, so we will write ant's name here. donkey, yes, donkey भी नहीं उड़ सकता है, तो donkey का नेम भी हम यहाँ लिखेंगे। mouse cannot fly, so we will write mouse name here. butterfly already shifted here, eagle already written here, crow already written here. The remaining is zebra. zebra भी एक land animal है, वो उड़ नहीं सकता है, so we'll write it here. Now in this column we have animals that cannot fly: elephant, ant, donkey, mouse and zebra. So this exercise was about animals. हमें इनको columns में arrange करना था. Now let us see what is next in the next exercise or about life skills. Yes students, on the same page, that is page number 24, there is an interesting activity, you can say it like that, life skills. ये life skills के बारे में है. I want to tell you students that we will not do it now. इसको हम अभी नहीं करेंगे. This is like an activity. This will be given to you as summer vacation homework. आपको ये समर वेकेशन के होमवर्क के तौर पर दी जाएगी. बट आई एम डिस्कसिंग इट विद यू. मैं आपसे ये डिस्कस ज़रूर कर रही हूँ, बट यू हैव टू राइट दिस एक्टिविटी और दिस एक्सरसाइज, यू कैन से बाय योर ओन. आपको ये अपने आप करना है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर सेल्फ. ये आपके बारे में है कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं. सो आई एम गोइंग टू रीड इट. डू यू एवर फॉरगेट टू हैव फूड? क्या आप कभी खाना खाना भूलते हैं? नो, नहीं भूलते. यू हैव फूड एवरी डे. आप हर रोज़ खाना खाते हैं. हाउ एवर वी समटाइम्स फॉरगेट टू डू सर्टेन थिंग्स. बट हालांकि हम क्या करते हैं, कभी कभी
कुछ चीज़ें करना भूल जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी डोंट डू देम एवरी डे। हम ऐसा इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उनको रोज़ नहीं करते। जो चीज़ें आप रोज़ करते हैं या जो टास्क या जो काम आप रोज़ करते हैं वो आप नहीं भूलते हैं। सो लर्न टू मेक अ लिस्ट फॉर सच थिंग्स। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाने की ट्राई करिए। वो लिस्ट किस तरह की होगी? यू हैव टू प्रिपेयर टू लिस्ट। आपको टू लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में ऐसी चीज़ें होंगी जो आप रोज़ करते हैं, जो कभी भूलते नहीं हैं। और सेकेंड लिस्ट में उन टास्क या उन चीज़ों का या उन थिंग्स के नेम होंगे जो आप कभी कभी करते हैं और अक्सर करना भूल जाते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल ऑल्सो व्हेन यू विल बी गिवन हॉलीडेज होमवर्क। जब आपको हॉलीडेज होमवर्क मिलेगा तब और स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपको ये कहाँ करना है, किस कॉपी या किस क्राफ्ट बुक में करना है, तो ये आपको बता दिया जाएगा। आई एम डिस्कसिंग दिस लाइफ स्किल। ये लाइफ स्किल मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर जो दिया गया एग्जाम्पल, माई लिस्ट, ये एक एग्जाम्पल है। आई मस्ट पैक माई स्कूल बैग एट नाइट। ये उन चीज़ों का है कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। मेरा स्कूल बैग है वो पहले से रात को ही पैक कर लेना चाहिए। आई मस्ट पुट माई टॉयज़ अवे। और जो मैंने खेल खेले हैं या टॉयज़ के साथ खेला है या गेम्स के साथ खेला है उनको वापस अरेंज कर देना है जहाँ से मैंने उनको लिया है। आई मस्ट वाटर द प्लांट्स। मुझे पौधों को पानी देना है। ये लिस्ट इस बच्चे की है। यू हैव योर ओन लिस्ट। आपकी अपनी लिस्ट हो सकती है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट लिस्ट बट एज holidays homework. So now what we are going to do in our English class, students, we have completed the book work of our lesson number 2, The Fly. Now in our today's class we will write down spell drill of this chapter, that is lesson number 2, The Fly, in our English reader notebook. So take out your English reader notebook and wait for the next board. Yes students, open your English reader notebook. अपनी English reader notebook निकालिए on a new page निकालेंगे आप। and like every time we start a particular chapter in our notebook, हम जब एक किसी particular chapter या poem को हम notebook में लिखना start करते हैं, we started with spell drill। हम spell drill से उसको start करते हैं। So this is the spell drill of our lesson number 2, The Fly. So as usual students, we will write classwork on the top left corner of the page. This is your classwork. You have to note it down. And today's date on the top right corner of the page. In the first line you will write lesson number 2. In the second line you will write the name of the lesson, that is The Fly. In the third line you will write our heading, that is spell drill. And from the fourth line we will start writing the spellings. In the fourth line we will write serial number, that is 1, and the spelling. I am going to read this spelling, T-I-N-Y, tiny. टाइनी का अर्थ है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। आई रिपीट, T-I-N-Y, टाइनी। एट नंबर 2 इट इज R-U-B-B-E-D, rubbed. R-U-B-B-E-D, rubbed. rubbed क्या है स्टूडेंट्स? रब का पास्ट फॉर्म है। आप रब करते हैं, यू राइट if it is wrong तो then you try to rub it with the rubber. आप रबर से उसको या इरेजर से आप उसको रब करते हैं। समटाइम्स आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो अपनी आईज को रब करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि आप कोई धूल या आंधी स्ट्रॉन्ग होता है या कुछ होता है तो आप अपनी आईज में इरिटेशन होती है, तब आईज को रब करते हैं। सो रब का मतलब है किसी सरफेस पे रब करना, रगड़ना या मलना।
So RUBBED, rubbed. At number 3 you will write WINGS, wings. WINGS, wings. wings का अर्थ है पंख, जो बर्ड्स के होते हैं, या हम कह सकते हैं एरोप्लेन के भी विंग्स होते हैं, जो उड़ते हैं उनके विंग्स होते हैं. I repeat, WINGS, wings. At number 4 it is SHINY, shiny. I repeat, SHINY, shiny. shiny का अर्थ है चमकीला. SHINY जिसमें चमक हो, that is called चमकीला, shiny. At number 5 it is SPREAD, spread. spread मतलब फैलाना. SPREAD, spread. It was our password 1 or 2 days ago. spread का अर्थ होता है to extend, कुछ फैलाना, कुछ इंक्रीज करना. that is, यहाँ पर क्या है कि the bird spread its wings, बर्ड ने अपने पंख फैलाए. ये हमारे चैप्टर में ऐसा है. SPREAD, spread. spread क्या हो सकता है? हम लोग जैम को स्प्रेड करते हैं अपनी टोस्ट पर, बटर को स्प्रेड करते हैं, या चीज स्प्रेड को स्प्रेड करते हैं. और क्या होता है? आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, द वायरस ऑफ कोरोना कैन बी स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, कि जो वायरस है वो कॉन्टैक्ट में आने से स्प्रेड हो सकता है. सो द नेक्स्ट इज FORGET, फॉरगेट. आई रिपीट, FORGET, फॉरगेट. फॉरगेट का अर्थ है भूलना, भूलता है या भूलती है. FORGET, भूल जाना, that is called forget. At number 7, that is our password also, REMEMBER, remember. REMEMBER, member. So collectively this word is remember. REMEMBER, remember. remember का अर्थ है याद करना, रिकॉल करना, अपनी मेमोरी में से उसको याद करना. नेक्स्ट इज एट नंबर 8 FLAPPED, फ्लैट. ये फ्लैप का पास्ट टेंस है. FLAPPED, फ्लैप. फ्लैप मतलब फड़फड़ाना. जैसे बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, उसके बाद वो फिर उड़ जाते हैं. FLAPPED, फ्लैप. सो these were 8 spell drill of lesson number 2. Now students, I want to tell you that that's all for our English class today. We will do our next work, that is word meanings, make sentences and question answers in our upcoming classes. So you have to note it down. This is your class work. I will send you a pic of this board also. So do your work neatly and nicely. Now students, take care. Bye bye. Do your work neatly.